Hi everyone, hope आप सब ठीक हो. This is Zalok here and welcome to my channel Modifit. Today's vlog is not going to be a fun vlog. जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, it is depressing, but it is what we are facing right now. जिसको पहले से नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ. I own a gym. The gym is located at Bhinder and the name is Absolute Fitness. If everything goes normal, tomorrow 1st of June हम अपने जिम का एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे. But unfortunately nothing is normal nowadays. Instead मैं यहाँ पे बैठा हूँ feeling helpless, अकेला, scared about the uncertainty of the future. I'm sure I'm speaking on behalf of most of the gym owners, trainers and staff of the gym. हमारी health industry, हमारा gym industry is bleeding to death. You'll be shocked to know that the most historical, the most iconic Gold's Gym America has already filed for bankruptcy. Another US-based 24-hour fitness is also hanging by a thread, और I'm sure वो भी follow करने वाले हैं same suit. They are also going to file for bankruptcy. Gyms in India are not doing any better. Most of the big names have already started laying off their trainers, their staff members. They have already started posting huge amount of losses. Most of the franchisees are getting closed down as well. तो हम तो ठहरे आपके friendly neighborhood gym. उनके सामने हमारा प्रॉफिट रेशियो तो बहुत ही छोटा है. वैसे भी हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इतना प्रॉफिट पोस्ट नहीं करते हैं. अराउंड 65 to 75% ऑफ रेवेन्यू दैट वी जनरेट, उसमें से सैलरीज हमारा निकल जाता है. बिग चंक रेंट लेके जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है. सो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है. पर इस सिचुएशन में द मीटर इज स्टिल टेकिंग, एवरीथिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, but we are at zero. We are earning zero income. See, it's not just the owners, it's also the staff as well. मेरे पहचान में इतने सारे trainers हैं जो literally day to day basis के हिसाब से चलते हैं. So अगर for example उनका income stop हो जाता है after a period of time, they land into big trouble. उनको घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा. और कभी कभी सिचुएशन ऐसा रहता है कि उनके फैमिली में सब उनके सैलरी पे डिपेंड करते हैं. तो सिचुएशन इतना बुरा है जिम इंडस्ट्री बंद होने की वजह से कि दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड टू देयर फैमिली. इफ़ यू टॉक अबाउट अस, इस कंट्री में वी वर द फर्स्ट वंस टू गो अंडर लॉकडाउन. आपने नोटिस किया रहेगा तो मेन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23rd से, और जिम गॉट क्लोज डाउन फ्रॉम 13 to 15th of March. ये रेशियो में ऑलरेडी जिम्स बंद होने चालू हो गए थे. बट आई एम सरप्राइज दैट वी हैवेंट इवन गॉट एनी सॉर्ट ऑफ मेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल नाउ. एक सिंपल सवाल यार, weren't we the ones who were building हेल्थ, वी वर बिल्डिंग इम्यूनिटी, जो आज के डेट में सब लोगों को जो ऑलरेडी हेल्दी है जिम जाके उनको वो काम आ रहा है एंड दे आर नॉट गेटिंग सिक. और इसी सिचुएशन में अभी हमें द हेल्थ इंडस्ट्री, द जिम इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जा रहा है. Why? See, I get it. जिम अभी नहीं खोल सकते because of crowd gathering. I know जिम में social distancing maintain करना would be very very difficult. Trust me, I'm not even asking for the same. I do not want the gyms to open ये scenario में. See, any which ways जिम खुलने पर भी it's not like कि हम लोगों को हज़ारों के तादाद में लोग आ जाएंगे एडमिशन लेने के लिए कि बहुत टाइम से उन्होंने जिम नहीं किया है. I get it कि लोग डरे हुए हैं. We get all of that part. In fact, I can give you a live example. US में gyms थोड़े बहुत खुल चुके हैं, but the crowd strength there is around 20 to 30%. So इस सिनेरियो में जिम खुलना और लोगों का एडमिशन्स नहीं लेना any which ways हम लोगों के लिए और लॉस वाला सिचुएशन होगा. What I am asking for is support by this government. देखो, I understand that government is also trying to play their part. It's not like कि उन्होंने कंट्री वालों को ऐसे ही छोड़ दिया है. They have started up various relief packages. They have given insurance to healthcare workers. They are giving extensions to the people who have already taken loan, right? So वो EMI 3 महीने बाद में भर सकते हैं और इनफैक्ट 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया है. So they are doing all of this. But it is not enough. इतना काफ़ी नहीं है because service industries have not got any direct benefits. What my point is that government should actually look at a country like Germany, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए ये छोटे स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए. जैसे उन्होंने ग्रांट्स प्रोवाइड करना चालू किया है. व्हेन आई से ग्रांट्स, दैट मीन्स दैट दे आर हेल्पिंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स टू पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़. वो लोगों ने छोटे बिजनेस से टैक्सेस मांगना बंद कर दिया है.
वो लोगों ने रेंट पार्डन करना चालू कर दिया है. सो वी कैन डू समथिंग लाइक दैट एज वेल. और हमारे सिचुएशन में तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बोलना पड़ेगा कि भाई it is not the right time to keep on charging people for a closed place as well. The reason I'm saying this is last 2-2.5 महीना हो गया, इनफैक्ट लास्ट 2.5 महीने से जिम बंद है. आई हैव गॉट 20,000 and 17,000 रफली अराउंड दीज लास्ट 2 months. जब उनके कस्टमर सर्विस से बात किया है तो वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग एक एवरेज एस्टिमेशन ऑफ बिल लगा रहे हैं और सेंड कर रहे हैं. जगह बंद है, देयर इज नो नीड ऑफ एस्टिमेशन. वो लोग ये टाइम पे भी एक एवरेज बिल का नोटेशन दे के हम लोगों को बिल भरने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं. दे आर एक्चुअली गिविंग अस अ कॉल एंड आस्किंग अस टू पे द बिल. When I complain to them, I send a proper email. उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है. मैंने 3 बार ऑलरेडी ईमेल कर दिया. There is no revert back. I am sure most of the people who have Adani as their electricity holder must be facing this problem. See, I am proud of my country, but our government needs to learn something from the government of Germany, who have actually invested 60% of their GDP so that these small business owners, these medium-sized business owners do not go bust. और ये कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन में उनको एक हेल्प मिल जाए. इंडिया ऑन दी अदर हैंड हैव जस्ट स्पेंट दैट ऑल्सो एन अनडिस्क्लोज फिगर ऑफ 10% ऑफ द GDP. It's not good enough. And these are the facts. You can get it easily on Google. So if you want, you can Google this. अब हमारे केस में इसे पॉजिटिविटी समझो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझो, बट मैनी ऑफ द जिम ओनर्स और मैनी ऑफ दिस फ्रीलांसिंग ट्रेनर्स या जिम के ट्रेनर्स भी जिनको अभी जॉब से सैलरी नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ, what they have done is they have started giving online training on Zoom app, WhatsApp and all that to get some sort of financial assistance. और ये trainers जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, make sure you take this advice. Make sure ये लॉकडाउन पीरियड को वेस्ट मत जाने दो एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन स्किल्स एज वेल, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर नॉर्म मोस्टली यही हो. जितना हो सकता है ऑनलाइन स्किल्स अपना बढ़ाने का ट्राई करो एंड ट्राई प्रमोटिंग योर ऑनलाइन का ट्रेनिंग एंड यूज़ योर स्किल्स. तो इस सिचुएशन में ज़ीरो आने से अच्छा थोड़ा बहुत भी आप पैसे कमा लिए इज़ गुड. एज यू हैव हर्ड द सेइंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. और जो भी ये वीडियो देखे, कहाँ पे भी ये वीडियो पहुँचे, प्लीज़ मेक श्योर आप ट्राई करो सपोर्ट करने का. गो ऑन विद दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम. ऐसे समझ लो आप घर बैठे जिम कर रहे हो, ताकि इनसे एटलीस्ट ट्रेनर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा बहुत आपके हिसाब से उनका लाइवलीहुड चल जाए. इंटर्न they will be really thankful for you guys if you go ahead and take those training programs. Okay, I'm gonna end this here. Hope for some kind of positivity in the future. Meanwhile, what I request anyone who's watching the video right now, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, I do not care आप मेरे इसके पहले वाले आपने कोई भी वीडियो शेयर किए कि नहीं किए. आई डू नॉट केयर इसके बाद में फ्यूचर में आप कोई वीडियो मेरा शेयर करने वाले हो नहीं करने वाले हो. बट वॉट आई केयर इज़ दिस, स्पेसिफिकली ये वीडियो को share it as much as possible, not just with people you know in the fitness industry, but share it with everyone that you can find, your friends, your family के friends, your friends के friends. Share it as much as possible, ताकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो एक प्रोमिनेंट फिगर तक ये वीडियो पहुँचे जो इन टर्न हमारे लिए कुछ तो कर पाए. Stay safe everyone.